OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. This is your chemistry class and today we are going to start a new chapter, that is synthetic fibers and plastics. So what we gonna study in today's session, we will study in detail about the synthetic fibers. What are synthetic fibers, how many types of synthetic fibers are there, and how we can use them. We will study all these things in today's session. So here you can see two of the synthetic fibers, that is rayon and nylon. We will study about rayon and nylon also. So let us get started. So the first thing is, what is synthetic fiber or man-made fiber and what is natural fiber? We have studied about natural fiber in previous classes in detail, and let me explain you what is natural fiber. So natural fibers are those fibers which are obtained from natural sources. As we have discussed in the previous classes already, we have studied that natural fibers are those fibers which we can obtain from the natural sources. Now the question here is, ma'am, what are the natural sources by which we can obtain the natural fiber? The natural sources could be the plants and the animals. So what are plant fibers? The fibers which are obtained from plants, for example cotton and jute. And what are animal fibers? Animal fibers are those fibers which we can obtain from animals, for example wool and silk. Because in this chapter we are going to study about the synthetic fibers, so let us understand what synthetic fiber means. The word synthetic comes from synthesis. We synthesize the particular fiber without using the natural sources. ठीक है, ऐसे फाइबर जिनमें natural sources की help के बिना हम उन fibers को बना लें अगर, तो हम उसे क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स. और हम का मतलब क्या है, वी द ह्यूमन बींग्स, तो हम लोग बना रहे हैं. सो दैट is why these fibers are also known as man-made fibers. What are they known as? They are known as man-made fibers. ठीक है, तो synthetic fibers क्या हुए? The fibers that are chemically prepared और chemically synthesized, मतलब हम उनको synthesize करते हैं, बट कैसे, केमिकल्स की हेल्प से. एंड दीज आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, सो दीज आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स. और मैन मेड फाइबर्स, इन्हीं को हम मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं. मैन मेड फाइबर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि कौन बनाता है, मैन बनाता है, ह्यूमन बीइंग बनाता है. दैट इज व्हाई वी कॉल इट मैन मेड फाइबर्स. सो सिंथेटिक फाइबर्स एंड मैन मेड फाइबर्स इज द सेम थिंग, राइट? Now the next is, what are synthetic fibers? As I have told you, the fibers made by human beings, okay, or the fibers we produce, the fibers we synthesize are known as synthetic fibers, and they are synthesized with the help of chemicals. Here you can see in the given picture that these are made up of small units. Smaller units are attached to make a bigger unit, make a bigger single unit. So these are known as polymers. Okay, so what are polymers? When small units combined together to form a large unit. So the small units will be monomers and the one large unit will be polymer. So suppose here you can see in the given picture that there are many paper clips that are joined together. We can say that this one paper clip is joined to the another paper clip, and this paper clip is joined to the another paper clip, and thus this forms a long chain. It is forming a long chain. For example, suppose there are beads, right? So for example, there are beads. So beads are joined together to form a long chain of beads. So here this whole long chain will be known as polymer. पॉलीमर का मतलब क्या होता है? पॉलीमर का मतलब होता है जब एक साथ बहुत सारे यूनिट्स जुड़कर एक बड़ा यूनिट बना ले. और यहाँ पे हर एक यूनिट, ये सिंगल यूनिट है, again this is also single unit, 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 and this is also single unit. So all these single units or each of the single unit will be known as monomer.
what it will be known as monomer. So यहाँ पे क्या है, जो हमारे synthetic fibers होते हैं they are generally polymer. Polymer क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे सिंगल यूनिट, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक बीड मिलकर जो है उन्होंने एक माला बनाई है, तो यहाँ पे क्या है, एक एक बीड जो है वो क्या हो गई, मोनोमर, और जो ये पूरी माला बनेगी वो क्या हो गई, पॉलीमर. सो पॉली का मतलब होता है मेनी. पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी, और मर का मतलब क्या होता है, मर का मतलब होता है यूनिट्स. सो पॉलीमर क्या हो गया, जिसमें बहुत सारी यूनिट्स हो, बहुत सारी सिंगल यूनिट्स हो. और अगर हम बात करें मोनो की, तो मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है वन या फिर सिंगल. और अगेन मर का मतलब क्या होगा, मर का मतलब होगा यूनिट्स. तो मोनोमर्स में क्या होता है, सिर्फ वन यूनिट होती है, मतलब सिर्फ एक. दिस इज अ मोनोमर, ठीक है, दिस इज अ मोनोमर. बट अगर हम बात करेंगे पॉलीमर की, तो ये जितने भी 6 बीड्स आर अटैच टुगेदर, सो ये 6 बीड से एक पॉलीमर बनेगा. ठीक है, सो यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज पॉलीमर एंड व्हाट इज मोनोमर. मोनोमर इज द स्मॉल यूनिट, स्मॉल सिंगल यूनिट. ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लिखा है स्मॉल यूनिट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट. राइट, स्मॉल यूनिट्स, ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ठीक है, जब ये कंबाइन करेंगे और एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाएंगे, तब हम उन्हें पॉलीमर्स कहते हैं. इसमें अगर हम बात करें तो दिस होल चेन ऑफ पेपर क्लिप्स इज पॉलीमर. बट व्हाट इज अ मोनोमर, दिस इज अ मोनोमर. इफ अगर हम बात करें कि जो एक सिंगल यूनिट होगा, दिस इज अ मोनोमर, दिस इज ऑल्सो अ मोनोमर, दिस इज ऑल्सो अ मोनोमर. तो जब छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, तो वो जो छोटे यूनिट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको मोनोमर कहते हैं. और जो एक कंप्लीट बड़ा यूनिट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलीमर. सो सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड ऑफ पॉलीमर एंड देयर आर ऑल्सो द नेचुरल पॉलीमर्स अवेलेबल. ठीक है, यहाँ पे नेचुरल पॉलीमर्स भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज इज अ नेचुरली एग्जिस्टिंग पॉलीमर विच इज मेड अप ऑफ द ग्लूकोज. यानी कि ग्लूकोज क्या होगा, मोनोमर होगा. ठीक है, ग्लूकोज सेल्यूलोज का मोनोमर होगा. सेल्यूलोज इज द पॉलीमर and cellulose is made up of many glucose, many units of glucose. So glucose will be the monomer. Right now I am here writing the glucose for G. So suppose this is one glucose monomer, this is one more, this is one more and this is one more. तो बहुत सारे जब ग्लूकोज के यूनिट आपस में अटैच होंगे तो ये बनाएगा पॉलीमर. ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा पॉलीमर विच इज अ सेल्यूलोज. ठीक है, विच इज अ सेल्यूलोज. सो सेल्यूलोज इज द नेचुरली existing polymer which is made up of small units of glucose. So glucose यहाँ पे क्या हो गया, glucose यहाँ पे हो गया मोनोमर, और पॉलीमर क्या हो गया, सेल्यूलोज. ठीक है, सो आई होप आपको पॉलीमर और मोनोमर का डिफरेंस समझ में आया होगा. मोनोमर इज स्मॉल सिंगल यूनिट, वेयर एज पॉलीमर इज द लार्ज बिगर वन. जो एक बिगर वन यूनिट बनेगी, उन सारी स्मॉल यूनिट्स को मिला के दैट विल बी द पॉलीमर. ठीक है, और पॉलीमर को बनाने वाले जो सिंगल यूनिट्स होंगे दैट विल बी द मोनोमर. राइट, नाउ लेट अस जंप टू द नेचुरल फाइबर्स. सो नेचुरल फाइबर का एग्जांपल कॉटन हो सकता है. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द नेचुरल फाइबर्स की नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो अगर हम प्लांट फाइबर्स की बात करें, ठीक है, तो प्लांट फाइबर्स में हम कॉटन ले सकते हैं, जूट ले सकते हैं. अगर हम एनिमल फाइबर्स की बात करते हैं, तो एनिमल फाइबर्स के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, एनिमल फाइबर्स के एग्जांपल हो सकते हैं वूल एंड सिल्क. राइट, so now the next is types of synthetic fibers. This was the introduction about the what is synthetic fiber and what is natural fiber. आपको थोड़ा सा रिवाइज भी हो गया क्योंकि नेचुरल फाइबर जो है हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ है. हमने पढ़ा कि सिंथेटिक फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच आर मेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स यूजिंग द केमिकल्स. राइट, अब हम बात करेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स कितने तरीके के होते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर देयर. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स एंड कुछ यहाँ पे मेंशन है. फॉर एग्जांपल रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक. पॉलिस्टर के फर्दर दो टाइप होते हैं, टेरेलिन एंड पीईटी, विच हैज अ फुल फॉर्म ऑफ पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थलेट. ओके, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ पीईटी. नाउ वी विल स्टडी वन बाय वन about the rayon, nylon, polyester and acrylic. So here the first
type of synthetic fiber is rayon and it is known as artificial silk. Now you will ask, ma'am, what is artificial silk and why the rayon is known as the artificial silk? Let me remind you that silk was first made in China. ठीक है, सिल्क सबसे पहले कहाँ बना था? चाइना में. अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि सिल्क जो है सबसे पहले कौन से देश में बनना शुरू हुआ था, तो दैट वाज चाइना. एंड जो चाइना था उसने ये सिल्क बनाने की जो प्रोसेस था ना, सिल्क बनाने का जो प्रोसेस था उसको बहुत सीक्रेट रखा हुआ था. बट सिल्क जो फाइबर है, सिल्क का जो फैब्रिक है वो इतना अच्छा है कि एवरीबडी वांट्स कि उन्हें ये टेक्निक पता चल जाए. नाउ देयर वर मेनी साइंटिस्ट जो ये चाह रहे थे कि हम जो है आर्टिफिशियल सिल्क बनाते हैं. ठीक है, उन्होंने कोशिश की कि हम कोई ऐसा फाइबर जो है डेवलप करें जिसमें जो है सिल्क की खूबियां हो, सिल्क की कैरेक्टरिस्टिक्स हो. सो वो लग गए इस काम में ये ढूंढने के लिए कि कैसे हम एक ऐसा फाइबर डेवलप कर सकते हैं जिसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो वो सिल्क फाइबर की हो. देन इन द एंड ऑफ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century finally they were succeeded and they obtained a fiber. They obtained a fiber that was obtained by the chemically treated वुड पल्प. ठीक है, वुड पल्प को हमने लिया, वुड को लिया, उसका पल्प निकाला, उसको केमिकल ट्रीटमेंट किया, केमिकल्स का यूज किया. देन दे ऑब्टेन वन फाइबर विच दे नेम्ड एज रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क. नाउ व्हाट इज आर्टिफिशियल सिल्क? क्योंकि नेचुरल सिल्क तो है नहीं. सिल्क कहां से मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है, तब तो वो सिल्क होता, नेचुरल सिल्क होता, प्योर सिल्क होता. बट दिस रेयन हैज द characteristics of silk fiber, but this is actually not the natural silk. That is why this rayon fiber is regarded as, that is why this rayon fiber is named as the artificial silk, right? So rayon fiber is obtained by the chemical treatment of wood pulp. So now we will study about the characteristics of the rayon fiber. First of all, it is a man-made fiber. Obviously, scientists ने इतनी मेहनत की है, बहुत सारे scientists यहाँ पे लगे थे. Plus, they have used the chemicals to obtain this rayon fiber. So it is man-made and it has a natural source. ऑब्वियसली यहाँ पे जो है नेचुरल सोर्स है, स्टिल इट इज कॉल्ड द मैन मेड फाइबर. क्यों? क्योंकि आप कहेंगे मैम आपने तो कहा था कि जो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन हो वो तो नेचुरल फाइबर है. यहाँ तो ये वुड पल्प से ऑब्टेन हुआ है और वुड जो है वो तो नेचुरल सोर्स है. देन व्हाई इट इज नोन एज मैन मेड फाइबर? इट इज नोन एज मैन मेड फाइबर क्यों? क्योंकि इसमें जो है लेबर लगी है. ठीक है, प्लस यहाँ पे हमने केमिकल्स यूज किए, हमने नेचुरली अवेलेबल, नेचुरली ऑब्टेन नहीं किया है. वी हैव डन मेनी केमिकल रिएक्शंस इन दिस. इसलिए इसका जो नेचुरल सोर्स होने के बाद भी, इसलिए इसका सोर्स जो है वो नेचुरल है, बट स्टिल इट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैन मेड फाइबर, राइट? सेकेंड थिंग इज इट इज डाइड इन वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स. इससे अच्छा क्या हो सकता है? हमारे पास खूब सारे कपड़े, खूब कलरफुल कपड़े होंगे. ठीक है, सो रेयन फाइबर जो है वो बहुत अलग अलग कलर्स में हम उनको डाई कर सकते हैं. मतलब जल्दी से जो है वो कलर पकड़ लेता है. वी कैन गिव डिफरेंट कलर्स टू डिफरेंट फाइबर्स, राइट? नेक्स्ट, व्हेनेवर रेयन इज मिक्स्ड विद कॉटन. ठीक है, अगर रेयन को हम कॉटन के साथ मिक्स करते हैं ना तो एक बहुत अच्छी बेडशीट बना सकते हैं. और अगर हम रेयन के साथ वूल मिक्स करेंगे तो हम कारपेट्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी के ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट? So this was the characteristics of rayon fiber, and now you know that why we call rayon as a artificial silk, right? So the next is nylon. Nylon is the first fully synthetic fiber. Rayon के केस में क्या होता है? Rayon के केस में जो है हमने जो सोर्स यूज किया था that was wood pulp, और जो ये wood है वो क्या है? नेचुरल सोर्स है. बट द नाइलॉन एक ऐसा फाइबर था जो फुल्ली सिंथेटिक था. हमने कोई भी नेचुरल सोर्स यहाँ पे यूज नहीं किया. तो उसको बनाने के लिए हमने क्या क्या यूज किया? हमने यूज किया कोल एंड वाटर एंड एयर. सो इन तीन कंपोनेंट्स के साथ जो है हमने एक फाइबर ऑब्टेन किया दैट वाज नोन एज नाइलॉन. अब अगर हम बात करें नाइलॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो नाइलॉन इज वेरी स्ट्रॉन्ग. मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना इन कंपैरिजन टू अदर फाइबर्स वो बहुत ज्यादा होती है. इट इज लाइट वेटेड, बहुत हल्का होता है. मतलब अगर आप नाइलॉन के कोई कपड़े या कोई भी क्लॉथ मटेरियल आप बनाएंगे तो दैट इज वेरी लाइट वेटेड एंड इट इज वेरी इजी टू
वॉश ऑल्सो, आराम से धुल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा हाई मेंटेनेंस नहीं है नायलॉन फाइबर, राइट। इट इज यूज टू मेक आइटम्स लाइक सॉक्स, यू कैन सी हियर, सॉक्स बना सकते हैं हम, रोप्स बना सकते हैं नायलॉन की, टेंट्स बना सकते हैं, टूथब्रशेस के जो ब्रिसल्स होते हैं जो अक्सर खराब हो जाते हैं, देन वी हैव टू चेंज द टूथब्रश, तो जो ब्रिसल्स होते हैं टूथब्रश के, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ नायलॉन। कार सीट बेल्ट्स आर मेड अप ऑफ नायलॉन, स्लीपिंग बैग्स आर मेड अप ऑफ नायलॉन, इनफैक्ट आर कर्टेन्स ऑल्सो मेड अप ऑफ नायलॉन। नायलॉन जो है वो पैराशूट्स बनाने के लिए और जो रॉक क्लाइंबिंग के लिए हम रोप्स इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए भी हम नायलॉन को यूज करते हैं। नायलॉन को पैराशूट बनाने के लिए क्यों यूज करते हैं? बिकॉज आई हैव सेड कि नायलॉन जो है लाइट वेटेड होता है, ठीक है, तो पैराशूट जो है वो लाइट वेटेड रहेगा, तभी आप जो है उसमें क्या करेंगे, आप उड़ सकते हैं, आप बायंसी जो है वो वहां पे फील कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज वाई कि पैराशूट्स जो है वो नायलॉन मटेरियल के बनाए जाते हैं। वाई रोप्स आर मेड, ठीक है, रोप्स क्यों बनाते हैं हम नायलॉन मटेरियल से? बिकॉज एज आई हैव सेड कि नायलॉन जो फाइबर है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है उसमें, वो हेवी वेट्स कैरी कर सकता है। इसलिए जब रॉक क्लाइंबिंग के लिए हम रोप्स बनाते हैं, वो भी हम किससे बनाते हैं? वो हम बताते हैं नायलॉन फाइबर से। हियर यू कैन सी अ ड्रेस दैट इज मेड अप ऑफ नायलॉन फाइबर एंड अ पैराशूट दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ नायलॉन फाइबर, राइट। सो द नेक्स्ट इज पॉलिस्टर। अगेन यहाँ पे पॉलिस्टर जो नाम है उसमें क्या है? पॉली प्लस एस्टर, ठीक है। पॉलिस्टर इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एस्टर। एक केमिकल होता है दैट इज नेम्ड एज एस्टर। जब हम उस केमिकल्स को बार बार जोड़ते हैं तो बनता है पॉलिस्टर। एज वी हैव स्टडीड अबाउट मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स, लेट मी टेल यू इन डिटेल दैट पॉलिस्टर जो है उसका नाम पॉलिस्टर क्यों पड़ा है। पॉलिस्टर, एज आई हैव टोल्ड यू कि पॉलिस्टर जो है वो बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से बना हुआ है, ठीक है, दैट इज नोन एज एस्टर। सो यहाँ पे क्या होता है? पॉलिस्टर का मतलब है कि बहुत सारे यूनिट्स है, जैसे एस्टर, देन अगेन एक और एस्टर, देन एक और एस्टर। सो सपोज ये 3 एस्टर्स हैं, तो ये एस्टर क्या हो गए? ये मोनोमर्स हो गए। दिस इज अ मोनोमर, दिस इज अ मोनोमर, दिस इज अ मोनोमर। ये एक एस्टर क्या हो गया? एक एस्टर जो है हमारा मोनोमर हो गया। ये वाला एस्टर भी क्या हो गया? मोनोमर हो गया। तो यहाँ पे जो है ये जो एस्टर है ये मोनोमर्स हो गए। अब बहुत सारे एस्टर्स मिलाकर जब एक सिंगल लार्ज यूनिट बन रही है तो वो क्या होगी? वो क्या होगी? पॉलीमर, ठीक है। ये क्या हो गया? पॉलीमर हो गया। तो पॉली मीन्स मेनी, मर मीन्स यूनिट्स। अब यहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो किसके यूनिट्स हैं? यहाँ पे ये यूनिट्स हैं एस्टर के। किसके यूनिट्स हैं? यहाँ पे एस्टर के यूनिट्स हैं, इसलिए नाम क्या पड़ा? पॉलीएस्टर। पॉली प्लस एस्टर, सो पॉलीएस्टर मीन्स एस्टर के बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स हैं, उससे जो है ये पूरा फाइबर बना हुआ है, ठीक है। सो दिस इज पॉलीएस्टर, ओके, और वी कैन से सिंपल एज पॉलिस्टर। So here you can see that polyester is a polymer, ठीक है। तो poly मतलब many, मर means units। so यहाँ पे किस चीज की units है? यहाँ पे units हैं ester की। so that is why we call this particular type of fiber as polyester। so polyester क्या होता है? polyester is made up of repeating units of chemicals called the ester। so अगर आपसे कोई पूछे that what is the monomer of polyester, तो what will be your answer? The monomer of polyester will be ester, okay, the monomer of polyester is ester. And what is the polymer of ester? The polymer of ester is polyester, right? Now the next is the characteristics of polyester. We will study about that, how polyester is beneficial to us. First of all, it remains crisp and wrinkle free, ठीक है। जो कपड़ों में हमारे क्या कहते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, हमें प्रेस करना पड़ता है, तो जो पॉलिएस्टर से बने कपड़े होते हैं वो रिंकल फ्री होते हैं, आराम से धो पहनो, कोई दिक्कत नहीं, उन्हें प्रेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। दे आर इजी टू वॉश, आसानी से धुल जाते हैं। एंड इट इज क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स, मतलब ड्रेसेस बनाने के लिए पॉलिस्टर जो है वो बहुत ही अच्छा मटेरियल साबित होता है।
Next is terylene can be drawn into very fine fibers that can be woven like any other yarns. As I have told you कि polyester के दो तरीके होते हैं, एक terylene एक PET. So terylene can be drawn into very fine fibers that can be woven like any other yarn. ठीक है, जैसे हम कोई भी yarn को weave करते हैं, सिमिलरली टेरिलीन जो है वो इतने फाइन फाइबर्स में हम ऑब्टेन कर सकते हैं कि हम किसी भी नॉर्मल यार्न की तरह से वीव कर सके. अगर हम बात करते हैं पीईटी की, तो पीईटी इज यूज्ड टू मेक बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स. एंड टेरिलीन इज अ वेरी पॉपुलर पॉलिस्टर. ठीक है, टेरिलीन जो है वो बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही ज्यादा जाना माना पॉलिस्टर है. नेक्स्ट इज एक्रेलिक. As we have discussed about rayon, which is an artificial silk, similarly acrylic is regarded as artificial wool. अब ये जब हमारे पास natural silk, natural wool available है, then what is the need to make artificial silk or artificial wool? See, natural silk and natural wool are very very expensive. Plus हमारे जो ये artificial silk होते हैं या artificial wool जो होते हैं, they are not so एक्सपेंसिव, राइट. सो देयर इज अ नीड. एक्चुअली हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता नेचुरल सिल्क और नेचुरल वूल. दैट इज वाई जो है हम एक चीपर रेट पे एक वूल निकालते हैं, ठीक है, या फिर चीपर रेट के हम आर्टिफिशियल फाइबर्स बना सकते हैं. सो एक्रेलिक इज रिगार्डेड एज द आर्टिफिशियल वूल. जो स्वेटर्स हम पहनते हैं, जो ये हमारे रेडीमेड स्वेटर्स आते हैं, व्हाट डू यू थिंक दे आर मेड अप ऑफ वूल? नो, दे आर मेड अप ऑफ एक्रेलिक. So what are the characteristics of acrylic now? So acrylic first of all regarded as an artificial wool. Secondly, it is comparatively cheaper than the natural wool. ठीक है, acrylic जो होता है वो natural wool से काफी ज्यादा cheaper होता है. Available in variety of colors. तो acrylic को हम different colors दे सकते हैं, जिसकी वजह से colorful fabric materials हम obtain कर सकते हैं. प्लस इट ड्राइज वेरी क्विकली. जनरली क्या होता है, जो हमारे वुलन क्लोथ्स होते हैं वो बहुत जल्दी सूखते नहीं है, वेयर एज एक्रेलिक हैज दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, हैज दिस क्वालिटी दैट इट ड्राइज वेरी क्विकली. इट इज वेरी इजी टू वॉश and can be used to make carpets, socks and gloves, etc. Right? Now let us jump to the characteristics of synthetic fibers, that what are the merits and demerits of them. Right? So first of all is that synthetic fibers dry up very quickly. बहुत आसान होता है इनको सुखाना, आराम से धो दिया, सुखा दिया, कोई टेंशन नहीं है. It is very less expensive as we have discussed about the natural silk, as we have discussed about the artificial silk, that is rayon, and artificial wool, that is acrylic. So this is comparatively much cheaper than the natural silk or natural wool. ड्यूरेबल, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, बहुत ज्यादा देर तक चलते हैं, जल्दी खराब नहीं होते हैं. इजी टू मेंटेन, हाई मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है. ठीक है, बहुत आसान है, आराम से धो दिया, सुखा दिया, कोई दिक्कत नहीं. रेडिली अवेलेबल, बहुत जल्दी अवेलेबल होते हैं. मार्केट्स में आप जाएंगे, आपको जितने भी स्वेटर्स, वुलन सॉक्स और ये सब मिलते हैं, दैट आर जनरली मेड अप ऑफ आर्टिफिशियल वूल. और जो नेचुरल वूल से मिले होंगे या मिलते हैं, that is very expensive. If we talk about the demerits, what are the disadvantages of using these synthetic fibers? So the first ever disadvantages can burn and stick to our body. बहुत जल्दी जलता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है. लाइक कहते हैं नायलॉन के कपड़े जो है पहनकर आग के पास नहीं जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि नायलॉन इज वेरी फ्लेमेबल, बहुत जल्दी आग पकड़ता है. सो दिस कैन बी हजार्डस टू योर बॉडी और टू यू एज वेल. एंड इट इज नॉट स्किन फ्रेंडली. ठीक है, जनरली बहुत लोगों को नेचुरल फाइबर्स ही सूट करते हैं, आर्टिफिशियल या और सिंथेटिक फाइबर्स सूट नहीं करते, बिकॉज बहुत सारी स्किन एलर्जीज जो है वो हो जाती हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स के कपड़े पहनने से. So these were some of the merits and demerits of the synthetic fibers. In this session we have discussed about various synthetic fibers, for example rayon, nylon, polyester and acrylic. We have discussed about the merits and demerits of the synthetic fibers. So this was all for today's session. In the next session we will discuss in detail about the plastics, how they are useful to us and how they are hazardous to us. So stay tuned. Until then, take care. Bye bye.